Then today my topic is that पास्टर आज बात कर रहे हैं God has called you to follow Him. परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने पीछे चलने के लिए। Then how far will you follow Jesus Christ? तो आप यीशु के पीछे किस हद तक कैसे तक जा सकते हैं? So this is the question. ये आज ये प्रश्न है। How far कितना दूर तक will you follow Jesus? आप कितनी दूर तक यीशु के पीछे जाएंगे? How far कितना दूर will you follow? यीशु के पीछे जाएंगे आप? 1 year? 1 साल चलेंगे? 10 years? 10 साल चलेंगे? 20 years? 20 साल 30 चलेंगे? year? 30 How साल? is your journey up with Christ? यीशु के साथ आपका सफर कितने साल का? So how far till now how far did you follow? अभी तक आप कितना यीशु के पीछे चल पाए हैं? ठीक है, brother Aman, how far do you follow Jesus Christ? यीशु के पीछे आप कितना चल पाए हैं अभी तक? That's all. Then how? What is your decision? और आगे आपका क्या निर्णय है? कितने साल और चलने का है? Okay, brother Zoe, how far do you follow Jesus Christ? Yeah, and then 7. How far will you follow Jesus Christ? See, will is the part, future, okay? So how far will you follow Jesus Christ? As long as I am on His side. Amen. So this is the message today for everyone. You question yourself that how far now I follow Jesus. तो आज आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि मैं यीशु के पीछे कब तक चलूंगा? Listen nicely. I want to listen today so that your life will never be before. तो आज का वचन ध्यान से सुने। पास्टर चाहती है कि आज का वचन आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करे। So now here, the Bible is asking us to everyone, how far will you follow Jesus तो Christ? आज बाइबल हम सबसे पूछ रही है कि कितना आप यीशु के पीछे चलेंगे? Last Sunday we talked about follow Jesus. पिछली बार हमने बात करी कि यीशु ने कहा मेरे पीछे हो। तो Today many people follow Jesus. आज बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलते तो हैं। For what? किस लिए चलते हैं? People follow Jesus. यीशु के पीछे चलते हैं, They want healing. उन्हें चंगाई जो चाहिए इसलिए। People follow Jesus. यीशु के पीछे चलते They हैं, want blessing. उन्हें आशीष चाहिए इसलिए। People follow लोग Jesus. यीशु के पीछे चलते हैं, They want solve their problem. उनको अपनी परेशानियों का हल चाहिए इसलिए People follow Jesus. यीशु के पीछे लोग चलते They हैं। thought that when they follow Jesus, everything will be fine. उनको लगता है कि यीशु के पीछे चलने से मेरा जीवन बढ़िया हो जाएगा। Yes, this thing will be there. हाँ, यीशु के पीछे चलने से ये But सब चीजें beyond मिलती है। that, लेकिन इसके परे भी when you follow Jesus, जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, God said, okay, follow me. परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो लो। Then when you follow Jesus, जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, then there is a cost. तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। There is a cost. एक कीमत होती है। For example, you are going somewhere. जैसे आप कहीं जाते हैं, Then you will be some cost that you are going to sacrifice. तो कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ता है अपनी जेब से। You are going to sacrifice your money. अपना पैसा खर्चना You are पड़ता going है, to sacrifice your time. अपना समय भी खर्चना You are पड़ता going है, to sacrifice your so many things left behind. अपने काफी सारे काम को छोड़ना पड़ता है एक जगह पे जाने के So लिए। now I am going Manipur. जैसे मान लो पास्टर मणिपुर से है, So I need to deny so many things to reach my destination. तो पास्टर को यहाँ दिल्ली में रहने के लिए मणिपुर के बहुत सारे ऐशो आराम को त्याग करना पड़ता I है। need to leave this church. पास्टर को इस चर्च को भी ध्यान रखना है, I need to leave so many things that I supposed to do. तो बहुत सारे काम जो इन्हें करने हैं So there is a cost to वो be तो छोड़ने sacrificed. पड़ते हैं, मतलब कुछ बलिदान, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। So Jesus said, follow me. तो यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, But just following. लेकिन कैसे चल रहे हो आप? Then when you are followed, जब आप चलते हो there will be a cost. कुछ कीमत आप चुका That रहे हो, situation come. और जब ऐसी परिस्थिति आती है What is your stand? तब आप यीशु के पीछे खड़े रहते हो या चले जाते That is my question हो? today. ये प्रश्न आज पास्टर You will start it. You say, okay, Jesus, प्रभु मैं आपका साथ जाएंगे. Then God also demand from you something. आप प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लो, आपने कहा ठीक है प्रभु मैं आपके पीछे हो लेती हूँ, लेकिन चलने के बाद, शुरू करने के बाद क्या क्या छोड़ रहे So हैं? today here तो आज बाइबल in this chapter 6, इस छठे अध्याय में you open chapter 6 verse 1. आप छठे अध्याय का पहला वचन अगर पढ़ते हैं, Jesus feeding the 5,000 यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया in the mountain. एक पहाड़ पर। Bible says it is only men. बाइबल ऐसा बताती है कि 5,000 पुरुषों की बात हुई, इसमें औरतें बच्चे भी गिने नहीं गए। And Allah, there is a woman, there is a children. तो मतलब बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगी। So when you study the book, तो अगर हम इस किताब को अच्छे से पढ़ते so हैं, all the people approximately, the people that in that crowd, 12,000. इसलिए लोग कहते हैं कि अगर 5,000 पुरुष हैं तो इसका मतलब कम से कम 7,000 औरतें और बच्चे, मतलब 12,000 लोग तो होंगे। So now Jesus was feeding them. तो यीशु मसीह उन्हें खिला रहे थे। People come to Jesus Christ. लोग यीशु के पास आए, People follow Jesus. लोग यीशु के पीछे चले,
get some food. उनको लगा हाँ हमें कुछ खाने को तो देगा ना ये। So wherever Jesus go, तो मतलब यीशु जहाँ जाते थे, people know that they want healing. तो लोग चाहते थे कि अरे हमें चंगाई मिल जाए। So wherever Jesus is तो there, जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते थे, God giving healing, परमेश्वर चंगाई भी देते God थे, giving food, खाना भी देते थे, and all these things. और ये सारी चीजें। And after that, और उसके बाद now Jesus went to another side. अब यीशु मसीह दूसरी जगह पर गए। Now we are teaching to the Galilee side. वहाँ पर गलील की झील के आसपास सिखा रहे थे। So today you see in the verse of the 50, आप 50वें वचन में आप chapter देखते 6 हैं, verse 50. 6 का 50। Now Jesus was teaching now deeper the people who follow Jesus Christ. तो अब जो यीशु मसीह के पीछे सच में चल रहे हैं, प्रभु ने गहराई से और कुछ नया सिखा रहा है। So now he told them, यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया, and Jesus told to the disciple and all the people who follow तो Jesus जितने Christ, लोग यीशु के पीछे चल रहे थे, उन सभी को यीशु मसीह ने क्या he बताया? said, this is my bread. उन्होंने कहा ये है, I come down from heaven, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, and one may eat of, they will not die. ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। I am the living bread जीवन की रोटी जो स्वर्ग से who come down from heaven. जो स्वर्ग से उतरी। Verse 51. And then if anyone eat of this, और यदि कोई इस रोटी में से खाए, he will live forever. तो वह सर्वदा जीवित And the रहेगा। bread that I shall और जो give you, रोटी मैं जगत के जीवन My के दूंगा, flesh, अपनी देह which I shall give it for you, तुम्हारे जो मैंने दी, the light of the world cannot give. वो दुनिया नहीं दे सकती। So now Jesus said, यीशु ने कहा, before he giving the real law, जब उन्होंने सच्ची एक रोटी दी उससे पहले 5 loaves, 2 fish, 5 रोटी 2 मछली, and people were eating more than 12,000. आप इनके इतने से 12,000 लोगों ने खा लिया। And many people come and many are healed. बहुत लोग आए, चंगाई को भी दिया। So wherever people there, and wherever Jesus is जब there, यीशु मसीह कहीं पर भी होते थे, people follow Jesus for healing, लोग झुंड के झुंड बना के उनके to पीछे solve their problem, चंगाइयों के लिए पीछे to पड़ते थे, heal their sickness, उनकी बीमारियों का इलाज के or लिए, to deliver them. कि वो किस तरह ठीक हो, चंगाई पाले। And now Jesus go to the heart of the people. अब लोगों के दिलों तक यीशु मसीह So पहुंचते now हैं। he is talking about the heavenly thing. यीशु मसीह अब धरती की नहीं पर स्वर्गीय चीजों की बात Now करते हैं। we did talk about the real law and real bread on this अब earth. यीशु मसीह यहाँ पर असली रोटी और असली पानी की बात नहीं कर रहे हैं। The people follow him. जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, Many thousands, millions are following. हजारों लोग यीशु के पीछे चल रहे थे। Then Jesus told now, तब यीशु ने उनसे क्या कहा? I am the bread of life. कि मैं जीवन की रोटी हूँ। He is talking about the real eternal life. तो वो यहाँ पे अनंत जीवन, अनंत रोटी की बात कर रहे हैं। So Jesus said, I give you having eating the law, तो यीशु मसीह कह रहे हैं, तुमने अभी रोटी खाई है जो हाथ से तोड़ and you खाई, eating the machli, तुमने मछली खाई है, that will not have everlasting life. ये तुम्हारा अनंत जीवन नहीं देगी। And the kingdom of God is not eating food and drinking. और परमेश्वर का राज्य खाने पीने का राज्य भी नहीं So है। I giving food, तो पर यीशु मसीह ने खाना दिया, I giving water, पानी भी दिया, you drink, तुम खाओ you पियो, eat, you will die. उसे खाकर तुम एक दिन तो मर जाओगे। But if you eat my flesh, लेकिन अगर तुम मेरी देह से खा लोगे if you eat my blood, और मेरे लहू को पी लोगे, you will never die again. तुम कभी नहीं मरोगे, You will never die again. कभी नहीं So मरोगे। now Jesus come to the real things. तो यीशु मसीह यहाँ पर असली चीजों की बात कर रहे हैं। So he say, I am the bread of तो life. यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ। This is the real meaning that I am the God. मतलब मैं परमेश्वर, Believe in me. मुझ में विश्वास करो, Trust in me. मुझ में भरोसा रखो, Don't run after food. खाने के पीछे मत भागो, Don't run after. Don't follow me because of your one blessing. ये मत सोचो मेरे पीछे से आ रहे हो सिर्फ चंगाई पाने You के want लिए, healing. तुम्हें आशीष चाहिए। Yes, you will get it. हाँ ठीक है, जिसे मिलता But है, believe inside within your पर heart. सबसे पहले अपने अंदर विश्वास करो। No matter what. चाहे कुछ मिले ना मिले, Sickness will be there. बीमारियां तो No रहेंगी, food will be there. अगले भूख- No भूखमरी job भी will be आएगी, there. Persecution will be there. खटाव भी होगा, Trial will be there. मुश्किलें होंगी, Challenges will be there. परीक्षाएं होंगी, Temptation will be there. बहुत सारी मुश्किलें होंगी। Follow me. उन सब में भी मेरे पीछे Eat चलो, my body. मेरे देह को खाओ। Then you will never die अगर again. वो खा लोगे तो मरोगे ही नहीं। Drink my blood. मेरे लहू को पी लो, The water that you are drinking, जो तुम पानी अभी पी रहे हो, you will thirst again. एक बार दोबारा But the प्यासे हो water जाओगे, that I give, लेकिन जो पानी मैं देता हूँ, You will never thirst इससे again. प्यासे नहीं होगे। So the real meaning is तो that इसका असली मतलब है completely follow me. कि पूरी तरह मेरे पीछे चलो, Believe in me. भरोसा रखो, Trust in me. विश्वास करो, No matter what. चाहे कुछ भी हो जाए, You should die for me. मेरे लिए मर भी जाओ, Walk with me. काम भी करो। Deny all the worldly और flesh. दुनिया में जो तुम्हारी देह मांगती है उसे मांगना एक बार देना बंद कर दो। Deny. हर चीज को If you मना want करो। to follow me, अगर मेरे पीछे you चलना need to चाहते हो, deny the worldly pleasure. तुम्हें
worldly pleasure. क्या होते हैं दुनिया के मजे? We want money. हमें पैसा चाहिए, Good job. अच्छी नौकरी Good चाहिए, family. अच्छा परिवार चाहिए। And we sit, we corrupt. हम बैठते हैं भ्रष्टाचार करते हैं। Oh, we want to enjoy life. हम कहते हैं दुनिया के सारे मजे मुझे मिलने चाहिए। Luxury life. एक आराम का जीवन, महंगे वाला। Yes, these things are important. हाँ, ऐसा नहीं कि जीवन में चीजें जरूरी नहीं है। But we should not first priority. लेकिन अगर हम इनको चीजों को जीवन केंद्र बना ले तो गलत। God is outside. You want these things. परमेश्वर भी कह रहे हैं हाँ ये चीजें चाहिए। But if you do like that, you will be dying. लेकिन अगर चीजों को आप केंद्र बना लेंगे तो आप मर So जाएंगे। if you follow me, अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, eat my flesh means what? तो यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी देह खाओ, Drink my water means what? मेरा लहू पियो, मतलब यहाँ पे अगर पानी। You need to obey me. तो मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना You है। need to love me. परमेश्वर से प्रेम You करना need to do my will, है। परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। not your will. अपनी इच्छा पर नहीं चलना है, You need to do my will. प्रभु की इच्छा में चलना है। God say do this one. परमेश्वर कहता है ये करो, Then we say no, बाद में करेगा. God said read this one. परमेश्वर ने कहा बाइबल पढ़ लो, Then you say no, I want to do fast. नहीं नहीं पहले ये काम खत्म कर लो। So we deny. तो हम धीरे धीरे प्रभु को So भी God नकारते says हैं। if you really want to follow me, परमेश्वर कहता है अगर सच में मेरे पीछे चलना है, and you need to do completely, you need to pull down all your pride, pull down all your sexual immorality, adultery, lie, hatred, envy, jealousy, murder, killing, selfish, greedy, all this wrong motive, you need to be take it out. तो तुम्हारे अंदर इतनी जलन है, व्यभिचार की सोच है, गंदगी है, झूठ है, जलन है, गुस्सा है, इन सब चीजों को निकालना पड़ेगा। Idol worship completely wipe away. पूरी तरह से मूर्ति पूजा को निकालना पड़ेगा। Completely, it means completely take over me. पूरी तरह से इसको अंदर लेना मतलब पूरी तरह से फॉलो करना। Today some people have 50-50 beliefs. Jesus आज कई Christ. लोग यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन वो 50% का विश्वास है। 50 Jesus, 50% यीशु मसीह, 50 of the world. 50% दुनिया में, 50 Jesus, 50 यीशु, 50 idol. 50 मूर्ति, 50 Jesus, 50 यीशु, 50 religion. 50 धर्म, 50 Jesus, 50 यीशु, 50 food. 50 खाना, 50 Jesus, 50 यीशु, 50 parivar. 50 परिवार, 50 Jesus, 50 यीशु, 50 husband wife. 50 पति पत्नी। So now we are dividing God following Jesus तो Christ. हम यीशु के पीछे पूरी तरह नहीं चलते हैं, हम डिवाइड करते हैं, भाग कर देते That हैं। is why Jesus said, no, this will not work. तो यीशु मसीह कहते हैं ये चलने नहीं वाला। You must eat my body. मेरे शरीर को You खाओ, must eat, drink my मेरे blood, लहू को पियो, so that you will never die again. ताकि तुम दोबारा कभी न मरो, You will get salvation. तुम्हें उद्धार You मिल will जाए, get eternal तुम्हें life. अनंत जीवन मिल But जाए। the water that you drink, लेकिन जो पानी जो तुम पीते you हो, will thirst again. दोबारा प्यास The लगती food है। that you would जो eat, खाना तुम खाते you हो, will always demand again. कल दोबारा भूख लग The जाती है। sex that you have, जो व्यभिचार, जो आप व्यभिचार करते you हो, will always demand again. बार-बार करने का The मन lie करता that है। you have, जो झूठा you बोलते will हो, always demand again. दोबारा से बोलने का मन करता Pride that है। you have, जो घमंड आज you करते will हो, always demand कभी again. भी घमंड आ जाता है। But if you have me, लेकिन अगर यीशु मसीह कहते तुम मेरे पास आ जाओगे, you will have the eternal life. अगर तुम्हारे पास यीशु मसीह होगा तो तुम्हारे पास अनंत जीवन होगा। Then people are haran ho gaya. You know, people, all the disciples. See, here the Bible talk about not only 12 disciples. तो यहाँ पर जो चेलों की बात होती है, सिर्फ वो 12 ही चेले नहीं So बैठे, many people following him. हजारों लोग यीशु के पीछे चल रहे थे। We don't know how many people. यहाँ नहीं पता कितने So लोग थे। Jesus speak to the real meaning of God. तो यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर के बारे में साफ-साफ बता रहे Jesus हैं। said, I come from heaven. यीशु मसीह बता रहे हैं मैं स्वर्ग से आया हूँ, I am God. मैं प्रभु। Then now the people following. अब जो लोग पीछे चल रहे थे, What kind of this thing is that? ये क्या बता रहे हैं? How we eat his flesh? इनकी देखा है कैसे How we खाए? drink this इनका लहू कैसे पी ले हम लोग? Jewish people against Jesus. तो यहूदी लोग यीशु के खिलाफ हो गए। And so now, what they do? तो क्या करा उन्होंने? You are the son of Joseph. तुम तो यूसुफ के बेटे हो, How can you say that you come from heaven? तुम कैसे कह रहे हो स्वर्ग से उतरे हो? So the crowd, before they say, I will follow Jesus. This I have decided to follow Jesus. Many are following Jesus. पहले तो हजारों लोग यीशु के पीछे चल रहे थे, मैं भी यीशु का चेला, मैं भी यीशु का चेला, Because they have profit. क्योंकि फायदा जो हो रहा They था, have food. खाना मिल They रहा have था, water. चंगाइयाँ मिल They रही थी, have पानी healing. मिल रहा था, That is why now they follow Jesus. इसलिए तो यीशु के पीछे चल रहे थे। Now Jesus come to them. लेकिन जब यीशु उनके पास आए, Now you follow me. अब अगर ठीक है, अब मेरे पीछे पूरी तरह चलो, Eat my body. मेरी देह को खाओ, Eat my flesh. मेरे लहू को I पियो, come from heaven. मैं स्वर्ग से आया हूँ। Then people will turn against तो Jesus. लोग यीशु के खिलाफ होने The शुरू हुए। disciple तो चेले who follow Jesus जो यीशु Christ, के पीछे चल रहे थे, they will turn against वो Jesus. यीशु के खिलाफ होते चले। Jesus see there. Read there in the verse 16. 60वां वचन पढ़ेंगे, अनंत जीवन के वचन। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर, Wait, okay, and then I'll read here, but verse
We will read all, but I will read here, verse 58. And the bread which come down from heaven, not as your father are the manna and the bread died. We who eat this bread will live forever. And this thing he said in the synagogue, and he taught in the Capernaum. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं 58वां वचन, यहाँ पर लिखा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। So now Jesus said, I come down from heaven. तो यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। Before Moses' time, when they are in the Israelites, तो मूसा के समय जब पहले इजरायली लोग they are in the journey. वो रास्ते में सफर में थे, They need to go to promised land. उनको परमेश्वर की दी हुई जगह, वादा की जगह कनान में पहुंचना था। God giving manna. प्रभु ने मन्ना आसमान से टपकाया। They are not working. वो लोग काम नहीं करते They are थे, not farming. वो खेती They are not नहीं doing करते, business. कोई व्यापार नहीं Because करते they थे, are in traveling, they need to reach promised land. क्योंकि परमेश्वर की वादे की जगह पे बस वो जाने के सफर में सफर कर रहे थे। 40 years 40 साल they are in the wilderness. वो जंगल में घूमते रहे। God supply everything. प्रभु ने खाना पीने को देता रहा। That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा My father giving manna. कि मेरे पिता ने मन्ना दिया। In Moses' time, मूसा के समय में they eat and they die. वो लोग खाए और मर गए। But now what I give? लेकिन अब मैं कुछ और दे रहा हूँ। I come down from heaven मैं खुद स्वर्ग से गिरा हूँ to save your life, अब तुम्हारे जीवनों को to बचाने के लिए, deliver your life, तुम्हारा छुटकारा देने to के लिए, give salvation, तुम्हें उद्धार देने के to लिए, took away all your curse and तुम्हारे issue सारे and sin. श्राप यीशु तुम्हारे सारे पापों को ले जाने के लिए। I come down अब मैं नीचे आया हूँ। and you eat manna and you die. पहले स्वर्ग से मन्ना गिरा, तुम उसे खाया तो But मर now गए। I am the bread. लेकिन अब मैं गिरा हूँ और मैं रोटी हूँ I am the my blood drink. और मेरा लहू तुम्हें पीना है। Then people are arguing. People तो are लोग बहस complaining. करने लग गए, शिकायत करने लग Now गए। they're grumbling. उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। Bible say they're grumbling. All the disciples, many are following. तो बहुत सारे चेले उनके पीछे चल रहे थे। Then they said, what kind of teaching is this? क्या सिखा रहे हैं, ये क्या बोलते How हैं? can we eat his flesh? अरे शरीर कैसे खा ले, How can we drink his blood? इनका लहू कैसे पी ले? But they are blind in पर वो spiritual. लोग आत्मिक रूप से अंधे थे। They follow Jesus. वो यीशु के पीछे चल तो रहे They थे, are blind वो अंधे थे spiritually. आत्मिक रूप से। God is speaking about spiritual things. परमेश्वर यहाँ पर आत्मिक चीजों के बारे में God बता is रहे not थे। really talking about to eat his flesh. परमेश्वर सच में उनके शरीर को खाने की बात नहीं कर रहे थे। God is really talking about the salvation that he bring if you take this one. परमेश्वर ये कह रहे थे कि तुम्हें उद्धार मिलेगा, Then you will not die तो again. दोबारा नहीं मरोगे। And the salvation only Jesus Christ. और उद्धार सिर्फ यीशु के द्वारा ही है। But they are spiritually पर वो blind. लोग आत्मिक रूप से अंधे They थे। are physically looking for the food. वो शरीर में बस सिर्फ खाना ही ढूंढ रहे थे। How can we eat your flesh? कैसे तुम्हारे नहीं खा How पाएंगे? can we drink your blood? कैसे तुम्हारा लहू पी पाएंगे? They started complaining. उन लोगों को शिकायतें करनी Then शुरू read की। 16. तो अब 60वां वचन पढ़ते हैं। Very beautiful scene. उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? Read all. 61 61 यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने उनसे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। 65 Wait. So stop there. So now, people are complaining, grumbling. तो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। Jesus know their heart. यीशु को सिर्फ दिल को जैसे हम लोग का अंदर ना कुछ क्या ग्रम्बलिंग कर रहा था, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या हम लोग का बच्चन सिखा रहा है, ये क्या डॉक्ट्रिन है, ये क्या कहानी है, ये क्या टीचिंग है, ये क्या प्रीचिंग है. So they are grumbling तो inside. लोग कुड़कुड़ कर रहे थे अंदर। Then Jesus know their heart. तो यीशु मसीह जानते थे कि क्या हो रहा है इनके दिलों में। Jesus was real speaking and the salvation. यीशु मसीह तो वहाँ उद्धार की बात कर रहे थे। That is why the Bible says. इसलिए बाइबल बताती है। And here they are spiritually blind. तो वो लोग आत्मिक रूप से अंधे थे। Verse 63. It is the spirit who give life, the flesh profit nothing. 63 आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से The कुछ word लाभ that नहीं। I speak to you is a spirit जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है and our life. और जीवन भी है। So now God is talking
people are spiritually dead. आज बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से अंधे हैं। They follow Jesus, वो यीशु के पीछे चल तो रहे हैं, but they don't know who is तो Jesus. यीशु है कौन और ये भी नहीं पता। They follow because they want only healing. वो क्यों यीशु के पीछे चल रहे? चंगाई चाहिए सिर्फ इसलिए। They follow Jesus, they want only good things. उनको सिर्फ आशीष चाहिए, बढ़िया बढ़िया, इसलिए चल रहे हैं। They follow Jesus, they want only every problem to be solved. उनके जीवन में हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलना चाहिए, इसलिए यीशु के पीछे चल रहे But हैं। they are spiritually they are blind. पर आत्मिक रूप से बहुत सारे लोग मरे हुए अंधे हैं। So that's what Jesus said. They are spiritually they are doesn't know what they are here. तो इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो लोग नहीं समझ रहे कि क्या हो रहा है। God is speaking about spiritual things. परमेश्वर यहाँ पर आत्मिक चीजों की बात He is कर रहे हैं। talking about I am the salvation. वो बता रहे हैं कि मैं उद्धार हूँ, I am the eternal life. मैं अनंत जीवन हूँ, I am the God. मैं परमेश्वर हूँ, I only can save you. मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। Whether you are sick, चाहे तुम बीमार हो, whether you are poor, चाहे तुम गरीब whether हो, you are problem, चाहे तुम्हारी whether परेशानी you हो, are persecution, चाहे तुम सताव whether हो, you are killed, चाहे तुम्हें मारा जाए, live for me. प्रभु के लिए जियो, Believe in me. विश्वास You करो, will have life. तुम्हें जीवन The मिलेगा, life of abundance. अनंत जीवन So मिलेगा। you are talking in those things. तो परमेश्वर यहाँ पर इन बातों के बारे में बता रहे But हैं, people follow लेकिन लोग only for good things. सिर्फ बढ़िया चीजों की नहीं यीशु के पीछे चलते हैं। Now God stop giving. अब जब परमेश्वर ने देना बंद कर दिया, Then they stop following. तो ने यीशु पे चलना बंद कर दिया। आप प्रभु में मांगते हैं और आप मांग के नहीं दिया तो प्रार्थना stop, चार्ज stop और प्रभु का विश्वास करना का stop. As दुनिया is alright. So today many people run for healing. If they didn't get, they stop believing. तो आज बहुत सारे लोग चंगाई के लिए यीशु के पास आते हैं और जब नहीं मिलती है तो वापस चले जाते हैं। And when they are asking something, they demand something. They this I want. If they didn't receive, they turn away from God. ऐसे कई बार लोग परमेश्वर के पास आते हैं, कुछ लेकर आते हैं, कुछ उम्मीदों के साथ आते हैं, जब उनको समय पे नहीं मिलता है। So now चढ़ today जाते हैं। spirit, God is talking about the spiritual things. तो परमेश्वर यहाँ पर आत्मिक चीजों की बात कर So रहे he हैं। say that the spirit who give life, the flesh profit nothing. तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि आत्मा तो जीवन दाएगा, शरीर से कुछ लाभ नहीं। See the spirit, God giving the spirit. परमेश्वर ने आत्मा दी है, This flesh is nothing. ये शरीर कुछ नहीं है। Now you're eating, drinking. This is nothing. अब ये कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, शरीर में डाल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। It will die one day. एक दिन तो शरीर It कितना will destroy one day. खत्म हो जाएगा। But God is talking about the you believe in Jesus. तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं यीशु मसीह कि तुम यीशु पे विश्वास करो, No matter what, कि चाहे कुछ भी हो जाए, no matter what the challenges is. चाहे मुश्किलें क्यों ना रहे, I may be arrested. एक दिन शायद मुझे पकड़वा लिया I may जाए, be burned. मुझे जला दिया But जाए, I should always follow Him. पर आपको यीशु के This पीछे चलना flesh है। क्या लेना देना है प्रभु के लिए? प्रभु तो हम लोग का स्पिरिट को सेव करना है. So God really want to save your life. तो परमेश्वर आपके आत्मा को बचाना चाहते हैं। So now then, what is that verse 64? But there are some of you, and you do not believe. People will not believe what Jesus is teaching. तो जो यीशु में सिखा रहे थे लोग समझ नहीं पा रहे थे। And for Jesus knew from the beginning, तो यीशु मसीह शुरू से जानते थे and who are they are not believe, कि कौन लोग हैं जो मेरा विश्वास नहीं and they are going to betray it. और वो धोखा देंगे। So Jesus know many people come to church. तो बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, यीशु को पता है। Everywhere the church. आप किसी भी चर्च में चले जाओ, Many people come to church. हजारों लोग चर्च आते हैं। यीशु बोला कि और सुनगाई करने के लिए सारी चीज के आते हैं, पर प्रभु मालूम है कौन सच्चाई मेरा पीछे सब है. God knows the bottom of our heart that who is really the child of Jesus तो Christ. परमेश्वर तो हमारे हृदयों को जानते हैं कि कौन सच में यीशु के पीछे चलता है। So God knows the thousands of people follow Jesus. हजारों लाखों लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं आज। God knows their heart. प्रभु ने उनके दिलों को देखता है। Some heart are coming. कुछ दिल तो आते हैं, मेरा पैरालाइज थे करने के लिए. Some दिल are coming प्रभु के पास आया. Some are coming to heal cancer. Some are coming to receive job. Some are coming to receive all the failure that they have and all the problem that they have, all the issue that they have to heal. तो आज बहुत सारे लोग यीशु के पास इसलिए आ रहे हैं, चंगाई मिल जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए। लोग इसलिए अलग-अलग इन कारणों की वजह से यीशु के पीछे चल रहे हैं। This week, yesterday, one sister was calling me up. कल एक बहन ने पास्टर को कॉल किया, I went to so many healing places. मैं बहुत सारी जगह पर चंगाई के लिए गई हूँ। I went to doctors. डॉक्टर के I पास went गई, to America. अमेरिका भी गई, I went to everywhere. हर चर्च में फिर भी चली गई। But I didn't get healing. अब तक चंगाई नहीं मिल रही, I am the problems. प्रॉब्लम है। I want to meet you. मुझे आपसे मिलना है। I say I have already reached my home. पास्टर कह रहे अब तो मैं घर पहुँच गई हूँ, I will not able to come back to church. मैं चर्च नहीं आ सकती। And then she was complaining this and that. वो शिकायतें कर रही थी। See, many people follow Jesus to get something from Him. जितने लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ पाने के लिए चल रहे हैं। But many people didn't
sacrifice their life लेकिन लोग इसलिए यीशु के पीछे नहीं चल रहे कि हम प्रभु के लिए क्या बलिदान कर पाए, to get ready, तैयार होने के to लिए, obey Him. प्रभु के को आगे में पालन To love करने के लिए, Him. परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। So they want something, they didn't get it, then they backslide. तो प्रभु के पीछे कुछ पाने के लिए पीछे चल रहे हैं, जो नहीं मिलता है तो पीछे हो लेते हैं। They follow Jesus, they come to church and nothing happened, then they go back to the idol. वो चर्च आते हैं, चर्च में अगर कुछ होता नहीं है तो वो फिर कहते हैं लोग वहीं पे चलते So हैं। that is the thing that Jesus now see the people heart. तो यीशु मसीह यहाँ पर लोगों के दिलों को देख रहे हैं। Now before he was giving 5 loaves, 2 fish. पहले उन्हें 5 रोटी 2 मछली दी, Nobody complained. इसलिए शिकायत नहीं करी। Everyone was eating, अरे वाह मजा आ गया, enjoying food, all the blessing, अरे आशीष मिल रही है यीशु के पीछे, healing, चंगाई मिलती है, all enjoying. मजा ही मजा Now है। God stand up, Jesus was stand up and speaking. अब यीशु मसीह खड़े होके बोलते हैं I am the bread of life. कि मैं जीवन की रोटी हूँ, Eat my flesh, मेरी देह खाओ, drink my मेरा blood. लहू पियो। Then now started people are complaining. तो लोग शिकायत अब शुरू हो गई, What is that? अरे ये क्या हो रहा है, How can this is very hard to follow? ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं कर पाएंगे। Verse 60 said it is very hard to follow वो his तो teaching. कहते हैं, तो बड़ी कठोर बात है, ये कौन सुन सकता है। See so they said they turn up. तो उल्टे मुड़ गए। पहले आपको संगाई देता था, आप कोई भी मांगता था देता था, हाँ प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है, और प्रभु ना तो आप तो मिल गया, मेरे पीछे जाना है, तुम ये करना है, वो करना है, और आपको पाप मत करना है, होली करना है, पवित्र करना है। So now God is started talking to you now. तो परमेश्वर आपसे बात करना चालू करता है। So God answer your prayer. परमेश्वर की प्रार्थना को उत्तर दे चुका, God healing you. चंगाइयाँ भी दे You दी, say, oh God is good और all आप the बता रहे time. हैं, परमेश्वर भला है, हर समय हर चीज देता है, जो मांगो मिल जाता है। And now God say, if you follow me, अब प्रभु कह रहे, चल रहे हो ना मेरे पीछे, you should not lie, चलो ये झूठ बोलना You बंद should not कर दो, steal. चोरी करने भी बंद कर दो, you should not worship idol, मूर्ति की पूजा भी you छोड़ should दो। not associate with people, अरे वो दोस्त जो है तुम्हारे छोड़ दो उन्हें, you should not enjoy life of this world, अभी दुनिया के मजों को सब छोड़ दो, you should not watch movie, अरे पिक्चरें देखनी छोड़ दो, you should not gossip, चुगलियां भी छोड़ दो, you should not wrong fellowship, अब गलत दोस्तों को छोड़ दो, you should not have boyfriend, बॉयफ्रेंड तो तोड़ दो, you should not girlfriend. गर्लफ्रेंड हटा दो। Then now people, अरे ये क्या हो रहा है? क्या का preaching है? क्या का teaching है? ये तो मैं तो मुश्किल है प्रभु का पीछे जाने में। See now when we started, God is pointing you. If you follow me, don't do, don't do, don't do. पहले तो हम follow करते था, प्रभु का पीछे करते था, आपको सारी चीज सही था, दे था। जब नए नए प्रभु के पीछे आता है, प्रभु जो जो मांगता है आपको मिलता रहता है, मिलता रहता है, लेकिन जब चलते रहते हैं प्रभु के पीछे, प्रभु आपकी सफाई शुरू करता है। So now you are coming to church. प्रभु ने मेरे को संगाई दिया, प्रभु ने खाना दिया, प्रभु ने मेरे को पैसा दिया, जॉब दिया, मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, भला है, अच्छा है, लेकिन प्रभु अभी तो आपको आना है दिल से। इस छोड़ना, झूठ बोलना मत बोल, गाली मत कर, गला लड़ाई मत कर, प्राइड मत कर, घमंड मत कर, be humble, be a servant. तो एक नौकर, एक दास की तरह बन जाओ। If you follow me, अगर मेरे पीछे चलना be है a servant, तो दास बन जाओ, be holy, पवित्र बन जाओ, leave all your wicked friendship, अपने सारे गंदे दोस्तों के नंबर डिलीट कर दो, leave all your movie songs, सारी पिक्चर के गाने सुनने बंद कर दो, leave all your wickedness. सारी बुराइयों को छोड़ दो। Then हम लोग ऐसा बोलते हैं, तो हम पहले तो प्रभु भलाई बोलता था, अभी तो प्रभु ना को बात करे मत कर। क्रिश्चियन लाइफ बहुत मुश्किल है। बहुत बोरिंग है। ऐसे you now you turn against God. और लोग परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। प्रभु को पीछे जाना में नहीं जा पाएंगे, ये मुश्किल है, ये मेरा सही है, ये मैं इंजॉय करना है, मेरा पैसा है, मेरा जॉब है, आपका पैसा नहीं है, आपका जॉब नहीं है, प्रभु ने दिया है, और मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा लाइफ है। Now God is telling you to stop all the things that you are enjoying. तो अब परमेश्वर कह रहे हैं जिन चीजों का तुम मनोरंजन कर रहे हो, आनंद उठा रहे हो, अब वो भी छोड़ दो। Then now we are grumbling. तब हम कुड़कुड़ करना शुरू कर देते हैं। क्रिश्चियन लाइफ इतना दिमाग होता है ना? क्रिश्चियन लाइफ इतना लो होता है, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। पहले तो आप बताया क्रिश्चियन भला है, अच्छा है, आप अभी प्रभु ने बताया था झूठ मत बोल, रम मत पी, तो मत खाओ, बीड़ी मत पी। देन आप अभी तो क्रिश्चियन लाइफ अच्छा नहीं है, मेरा को मुश्किल है जाना में, मैं आज से चर्च नहीं जाएगा, मैं आज से उनका फ्रेंड को और पास्टर को नहीं मिलेगा, मैं आज से बाइबल नहीं पढ़ेगा, वापस क्या है बाइबल को वापस दिया। So many people like that.
बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। So when the reality comes, जब सच्चाई आती है ना God सामने, said, eat my flesh, प्रभु कहता है भाई देखा लो, drink my blood. मेरे लहू को पियो। Then people say, no, how can? लोग कहते हैं ऐसे कैसे, ये नहीं हो सकता। God says, stop drinking. प्रभु कहता है शराब पीनी छोड़ दो। No. अरे नहीं, God says, stop going movie. अरे पिक्चरें देखनी छोड़ दो। God says, stop playing girls, playing boy. Then you say, no, ऐसा नहीं हो सकता. So that is the things that people turn against. तो लोग इसकी वजह से छोड़ देते हैं प्रभु को। So now they stop following तो Jesus. यीशु के पीछे चलना छोड़ देते The हैं। before Jesus was giving food, healing, they enjoying. पहले तो यीशु मसीह चंगाइयाँ दी थी, छुटकारे दी, तब तो मजा आ गया। Now God says, if you follow me, अब प्रभु कहते चलोगे मेरे you must पीछे, eat my तो मुझे blood. देह खानी पड़ेगी, You must eat my मुझे body. लहू पीना पड़ेगा। That means what is the meaning of that? मतलब क्या है इसका? If you follow me, अगर मेरे पीछे you चलोगे, must stop all the character of evil. जो गंदी बुराई वाला चरित्र उसे छोड़ दो। You must stop all the evil thing that your flesh that you are doing. तो शरीर में सारे गंदे काम कर रहे हो वो छोड़ दो, So now you should be like me, ताकि तुम्हारा शरीर मेरे समान हो so जाए, that you will be saved, ताकि तुम बच जाओ, so that you will get तुम्हें salvation, उद्धार मिल so जाए, that you will get eternal life. तुम्हें अनंत जीवन मिल जाए। Then now people turn against Jesus. तब अब लोग ये सुनने के बाद खिलाफ हो गए, They follow. वो चल तो रहे हैं, Then they say no, it cannot. मगर अब तो मुश्किल हो रहा है। Then what? Verse 66. 66 में क्या लिखा Very है? beautiful. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके हाथ साथ ना चले। From that time, many of his disciples went back and walked away, and they are not following Jesus Christ anymore. Very sad. कितने दुख की बात है। Very, very sad. Bible said many people follow Jesus. बाइबल में लिखा है कितने हजारों लोग यीशु के पीछे चल रहे So हैं। it is not only the 12 disciples. सिर्फ 12 चेलों की यहाँ बात नहीं हो रही, So many people follow Jesus. यीशु के पीछे हजारों लोग चल रहे थे, Because Jesus was healed the क्योंकि blind, यीशु चंगाई दे रहे थे, healed the paralyzed, अंधों को ठीक कर रहे raised the थे, dead, लंगड़ों को, and मुर्दों को giving food, खाना भी खिला रहे थे, everything that they want. जो चाहिए था सब मिल रहा था, They giving. दे रहे थे, God supplying. प्रभु दे रहा था। Then now God told, तो लोग परमेश्वर ने कहा this thing is just for the moment. अभी ये खाना तो थोड़े देर ही चलेगा, This healing is just for ये moment. चंगाई तो थोड़े सालों की है। For the permanent healing, अगर तुम्हें परमानेंट चाहिए, for the permanent food, परमानेंट चंगाई, परमानेंट खाना चाहिए, you need to eat my flesh. तो मेरी देह खानी You पड़ेगी, need to drink my मेरा blood. लहू पीना पड़ेगा। For the permanent to be get saved, अगर तुम पूरे स्थायी रूप से बचना then चाहते you हो, should stop all the evil things. तो सारे बुरे काम छोड़ दो, You should stop all the ungodly things. सारे गंदे कामों को छोड़ दो, You should stop all the things that I don't want. जो चीजें प्रभु को पसंद नहीं है वो छोड़ दो। Then listen to God, His teaching. तो जब लोगों ने उनकी बातें सुनी, God told what is that? पहले तो रोहित को प्रभु ने कितना मांगता था, देता था, प्रभु को पीछे जाएंगे। तो प्रभु ने बताया था, रोहित आप ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। Then रोहित तो नहीं कर पाएंगे। So the same thing here the Bible said. तो यहाँ बाइबल क्या बताती है? Verse 66. 66 वचन में So many people follow Jesus कि Christ. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। But Jesus took teaching about the bread of life about him. यीशु मसीह अपने आप को जीवन की रोटी बताकर He said to him, he said to the people, वो हजार लोगों से क्या कह रहे थे? see, whoever believe in Jesus, जो भी यीशु में विश्वास करता है, whoever call upon the name of जो भी Jesus, यीशु के नाम को पुकारता है, they are the disciple, वो चेले होते हैं। not the only 12 disciples. सिर्फ 12 चेलों को चेला नहीं Here the कहता। Bible said so many disciples. बाइबल कहती है यीशु के बहुत सारे चेले थे। When Jesus said, eat my flesh, जब यीशु ने कहा मेरी देह खाओ, drink my blood, मेरी लहू पियो, that means इसका मतलब stop worshiping idol, मतलब मूर्ति पूजा छोड़ दो, stop doing ritual, सारे रीति रिवाज छोड़ stop दो, kala jadoo, काला जादू रोक दो, stop mandir mat jao, मंदिर मत जाओ, or stop sexual mat kar. व्यभिचार छोड़ दो। So then people say no. लोग कहते हैं ये तो नहीं होगा। Bible said so many disciples went away. बाइबल में लिखा है बहुत से उल्टे फिर गए ये बातें सुनकर। Many people बहुत सारे लोग following Jesus. यीशु में चल तो रहे थे, So crowd. इतनी भीड़। Jesus told the real meaning of life. और जब यीशु मसीह ने सच में पीछे चलने का The बताया, real Christian. एक असली मसीहत बताई, Then many turn away from तो the Lord. लोग पीछे मुड़ गए। Very sad. ये दुख की बात है। Same thing today. आज भी हमारे साथ ऐसा होता Many है। people believe Jesus बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलते हैं because of they want healing. क्योंकि चंगाई चाहिए थी, मिल गई। Many people follow Jesus यीशु के पीछे चलते हैं because of they want job, business. नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, जॉब चाहिए, फैमिली चाहिए। Then God say yes, I'll give you. प्रभु कहता है ठीक है ये लो, The more you receive, जितना मिलता है you have a testimony. गवाहियाँ आती रहती है। But now God say do this one. अब प्रभु कहता है कुछ तुम भी करो मेरे लिए। God say now stop doing evil. प्रभु कहता है बुराइयाँ भी छोड़ दो। Then
our part doesn't want to फिर हम कहते surrender. हैं वो तो नहीं होगा, आप ही करो जो करना है। हम लोग का part difficult to surrender. हम समर्पण नहीं कर पाते। God is surrendering to you, to loving you, providing you, but when our time comes, God said, you do this. जब हम कुछ चाहते हैं तो प्रभु हमें देता है, हमारी इच्छाओं को पूरी करता है, लेकिन जब प्रभु की इच्छा की बात आती है हम पीछे मुड़ जाते God said, we live holy life. हैं। प्रभु कहते हैं पवित्र जीवन जी के दिखाओ। Then we say, no. हम कहते हैं ये तो मुश्किल ये है। तो मुश्किल है, मैं तो नहीं हो पाएंगे। और क्रिश्चियन लाइफ थक गया, कितना रूल है, कितना लो है, कितना देना पड़ता है, ताई देना पड़ता है, ओपनिंग देना पड़ता है, और सर्च देना पड़ता है, और क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, काम छोड़ के निकलना पड़ता है। तो हम क्रिश्चियन मुश्किल, तो धीरे धीरे प्रभु का पीछे नहीं जाया, धीरे धीरे you are backsliding. और हम धीरे धीरे मुड़ जाते हैं। That is why God is speaking here. तो परमेश्वर यहाँ क्या बता रहे हैं? Many are following Jesus. कि यीशु के पीछे हजारों चल रहे थे, Now many are torn away लेकिन from यहाँ the लिखा है Lord. बहुत से उल्टे फिर गए। Today many people when we say healing crusade, आज हम कहते हैं हीलिंग क्रूसेड है, oh there is a miracle. अरे वहाँ चंगाई करने वाला आया है। Today what is there is a one church that too much famous now. Many are following. Many are coming. तो बहुत सारे चर्चेज हैं दिल्ली के अंदर जो बहुत फेमस है और वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं चंगाई पाने के लिए। Or what is in Punjab? पंजाब में बहुत सारे चर्च है। क्या बोलते हैं? I'm gonna all the sun now. So many people coming for healing. तो बहुत सारे लोग चंगाइयों के लिए जाते हैं। Yes, God healed them. और हाँ परमेश्वर चंगा करता है। But after healing, लेकिन चंगाई मिलने के बाद आप क्या God करते हैं? said, प्रभु कहता है stop Diwali, अब दिवाली मत करना, stop wine, शराब मत पीना, stop tobacco, गुटखा भी मत खाना, stop boyfriend girlfriend. बॉयफ्रेंड को भी मत बात करना। Then people say no. संगाई तो मिल गया, बाद में धीरे धीरे चांस नहीं जाएंगे। संगाई मिल के वापस गया घर पे, गांव पे, और कंटिन्यू, वो का लाइफ स्टाइल कंटिन्यू हो जाएगा। बाद में तो प्रभु के पास नहीं पहुंच जाएगा। So many people heal, deliver, but they never follow Jesus. तो आज बहुत सारे लोग चंगाई पा लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन यीशु के चेले कभी नहीं करते। Same thing in the Bible. तो ऐसे ही हम बाइबल बता रही है। 1,000, God is feeding the 5,000 people. यीशु मसीह ने 5,000 पुरुष और टोटल मतलब 12,000 So लोगों को many फीड people किया। follow Jesus. इतने हजारों लोग उनके पीछे चले। Now God is telling them, don't do this thing. You must follow me. तो यीशु ने कहा कि अब तुमने ये पाया है, अब तुम मेरे पूरी तरह चेले बनो। Now you must have the salvation. तुम्हें उद्धार भी पाना है, सिर्फ चंगाई नहीं। Now you must live a holy तुम्हें life. पवित्र जीवन भी जीना है। Just like me. मेरी तरह Love बनना one है, another. एक दूसरे प्रेम रखना है, Forgive one एक दूसरे को another. माफ करना है। Then they say no, मुश्किल है। मेरा enemy को, मेरा दुश्मन को कैसे मैं forgive करेगा? बाइबल में बताता है, forgive one another. बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा एक दूसरे को माफ करो। Then people say no. लोग कहते हैं ये नहीं होने वो वाला। गलत है, मैं माफ नहीं करेगा। प्रभु बताते हैं माफ कर, हम बताते हैं नहीं। So हम प्रभु का पीछे, this is how you're following God or not? तो अगर हम कहते हैं कि हम किसी को माफ नहीं कर सकते तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? And then the Bible also said, if you follow Jesus, बाइबल कहती है अगर तुम यीशु के पीछे चलते हो and if your eyes is committing sin, और तुम्हारी आंखों से भी तुम व्यभिचार कर रहे हो, निकाल। आंख ही निकाल। If your hand is committing अगर तुम्हारे stealing, हाथ से तुम चोरी कर रहे हो, कोई पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, काटे। तो हाथ को काट दो। Then हम मुश्किल जाना है, मेरा हाथ कैसे कटेगा? मेरा पीछे नहीं जाएगा। So Bible said in the Matthew, तो बाइबल में लिखा है, what is that? In the Matthew, Bible talk about, if you follow me, तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे चलते हो, your eyes committing sin, अगर तुम्हारी आंख तुम्हें व्यभिचार करवाए, then remove your eyes. तो अपनी आंख ही निकाल के फेंक दो। You better have a one eyes and go to heaven. तो इससे अच्छा तो हो कि एक आंख हो और तुम स्वर्ग तो चले जाओ। I was looking for Matthew 5. Turn to Matthew 5, chapter 29. Matthew 5, chapter 29 and 30. Read. तो यहाँ पे पढ़ते हैं मत्ती 5 के 29 and 30. 29 और 30 पढ़ते हैं, 29 और 30। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। See, God said that if you follow me, परमेश्वर ने तेरे पीछे पीछे चलना है। these eyes committing so many adultery, so many jealousy, so many envy, so many greedy. तो आँख से हम क्या क्या पाप करते हैं? बुराइयां करते हैं, जलन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कितने पाप करते हैं आँखों से। God said remove it. प्रभु कहते से निकाल दो। You have one
निकलेगा तुम्हें कैसे काम करेगा, ये आँख निकलेगा तुम्हें से चर्च जाएगा. So now you are difficult to follow तो Jesus. परमेश्वर के पीछे चलना बहुत मुश्किल होता है. This hand committing many a times sin. ये हाथ में बहुत बार पाप होता है. गलत जगह में टच करते हैं, गलत और ये लेग कहाँ पहुंचाता है. आइडल में, टेंपल में पहुंचाता है, सेक्सुअल इमोरल अडल्ट्री में पहुंचाता है, काला जादू के पास पहुंचाता है, गलत संगति में पहुंचाता है, और सारी चीज की जाके पहुंचाता है. प्रभु बताते हैं ई का वजह से आप पाप हो रहा, मेरा पीछे जाना है, अब मेरा चेहरा है तो कट करना. तो ये हमको ऐसे पॉइंटिंग करते हैं, तो हम कैसे कहते हैं, नहीं आज का दिन से मैं आपका साथ नहीं जाएगा, इधर जा रहा है. So that is the things that God is talking तो here. ये चीजों के बारे में परमेश्वर बता रहे हैं. That's why in the book of John chapter 6 verse 66, इसलिए यूहन्ना 6:66 में हमने क्या पढ़ा? God said, many have followed Jesus. कि यीशु के पीछे चल तो हजारों They लोग have रहे turned थे, away. लेकिन वो All उल्टे the थे. disciples turned away. सारे चेहरे उल्टे थे. Because God said, love your enemy. क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मनों से प्रेम करो. God said, if your eyes is committing sin, remove it. अगर तुम्हारी आँख पाप कर रहा है तो आँख निकाल दो. Remove means God is talking about the spiritual thing. तो प्रभु यहाँ पर आत्मिक चीजों की बात कर रहा है, असली में आँख तोड़ने की बात नहीं You कर रहा. should not see all this evil. मतलब गंदी चीजों को आँख से नहीं देखना है. Sense your life. अपने जीवन को Sense बदलो. your heart. अपने दिल को Sense बदलो. your hand. अपने हाथों को Sense बदलो. your walking. अपने चलने के स्टाइल को बदलो. From wine house you're going, come to the church. आप शराब की दुकान पे जा रहे हो, नहीं आप चर्च आए करो. That is a God talk about. परमेश्वर इस बारे में बात कर रहे हैं. Then people difficult to follow. तो लोगों के लिए यही मुश्किल हो रहा है. So many disciples. कितने सारे पीछे फिर गए. That's why today my topic is that. तो इसलिए आज पास्टर बता रहे हैं How far will you follow Jesus? कि यीशु के पीछे आप कहाँ तक, किस हद तक जाएंगे. When the strong God said this, you must do this. जब प्रभु आपके पाप आपको दिखाएगा तो क्या आप उसे छोड़ पाएंगे? Then God, we say no. हम कहते हैं नहीं, वो तो नहीं. Then now many are gone. तो इसलिए बहुत सारे उल्टे फिर गए. Many people before the church was full. पहले तो कलीसिया फुल होती थी. Then the real message giving. और जब सच्चे संदेश आने शुरू हुए, Then people say नहीं हम नहीं कर पाए. Slowly went on. तो धीरे-धीरे लोग जाने लगे. जब Sending the Jesus here. ऐसे ही यहाँ पर यीशु के साथ Then हुआ. Jesus turned to the तब disciples. यीशु ने चेलों की तरफ देखा, Many are gone. बहुत लोग चले गए. Then Jesus saw the 12 disciples. जब यीशु ने फिर 12 चेलों को देखा, Very beautiful. बहुत सुंदर है. Jesus said, are you also going? यीशु ने कहा तुम भी जाना है. English Bible में. Are you also going? क्या तुम भी जा रहे हो? In verse 66, verse 67, Jesus said to the disciples, 12 disciples, do you also want to go? तो यहाँ पर लिखा है आगे, तब यीशु ने उन 12 से कहा 67, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? Many are gone away. इतने तो चले गए, तुम्हें भी जाना है. God said, forgive your enemy. प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों God को said, माफ don't कर दो. committing adultery. व्यभिचार छोड़ दो. God said, don't worship idols. मूर्ति पूजा छोड़ God दो. said, don't murder. खून मत करो. God said, don't pride. घमंड मत करो. God said, don't be selfish, greedy. अपना मत सोचो, लालच God मत said, करो. live a holy life. पवित्र जीवन जियो. So many people gone away. लोग सुन के जाते जा रहे They थे. stopped following तो Jesus. यीशु भी चलना छोड़ दिया. Then Jesus saw the 12 disciples. जब यीशु ने फिर 12 चेलों को देखा, Are you also going to stop? तुम्हें भी जाना है. God said, if you want to go, go. यीशु कहते हैं वो चलेगा, तुम्हें भी जाना, तुम भी जाओ भाई. I am not forcing you. कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ. You can मैं go. तुम्हें भी जाना, तुम भी जाओ. I have no problem. कोई परेशानी नहीं है. But all these people going, तो जब जो लोग बाकी चले गए थे, they are going to go to hell. वो जब जा रहे हैं ना, वो सारे नरक जा रहे हैं. तुम्हें भी They जाना है. want only profit, ठीक है, उनको फायदा चाहिए था, but they don't want labor. लेकिन उन्हें मेहनत तो कुछ नहीं करनी प्रभु में. They want profit, वो सोच रहे फायदा मिल जाए, but they don't want sacrifice. पर मेहनत नहीं करेंगे, बलिदान नहीं They करेंगे. want good thing, उन्हें अच्छी चीजें चाहिए, but they don't want denying. पर वो इनकार नहीं कर सकते. Today we want good thing, आज हमें चाहिए सब कुछ अच्छा, but we don't want sacrifice. पर हम बलिदान दे Today नहीं we want सकते. God blessing, हम प्रभु की आशीष लेना चाहते हैं, but we don't want to obey Him. पर हम प्रभु के आगे में चलना नहीं चाहते. Today we want to be a success, हम सफलता चाहते हैं, but we don't want to do the will of God. पर हम प्रभु की इच्छा नहीं चाहते. We want to do whatever we want. जो मेरी इच्छा में वो चाहती. You want all God blessing, आपको प्रभु की सारी आशीष चाहिए, but you also want to enjoy life. पर अपने जीवन में भी तो मजे करते हैं. That is not चलेगा. ये दोनों चीज साथ में नहीं चल प्रभु का राजा में ही नहीं चलेगा. So now the disciple God said, "Do you also going to go away?" तो यीशु ने कहा कि तुम 12 से भी तुम्हें जाना है. Then Peter stand up. तो पतरस खड़ा हो गया. प्रभु नहीं, आप जीवन प्रति हैं आप, हम आपसे अलावा नहीं हो पा सकते. तो यहाँ पे लिखा है 68 में शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है.
और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। Amen. Amen. आमीन। We should be that kind of person. तो हमें ऐसे पत्रस ने जवाब दिया, हमें भी ऐसा होना So many people left चाहिए। कितने सारे जन चले गए because they are running for blessing. क्योंकि वो आशीष चाह रहे थे, आप प्रभु They सच्ची are बात running है। for healing. वो चंगाई के पीछे भाग रहे थे। But God saying, if you follow me, पर प्रभु ने कहा तुम्हें ये सब चाहिए, you should leave the things that you love. जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती है ना वो छोड़नी शुरू कर दो। What is the things that we love? क्या चीजें अच्छी लगती है हमें? We love all evil things. हमें बुरे काम सारे अच्छे लगते हैं। We love drinking. शराब We बहुत टेस्टी love होती है, smoking. सिगरेट भी बहुत We अच्छी होती love है, songli. We love gali. We love kutsa. We love zalal. We love pride. मैं की पसंद है सबको। मेरा घर ही है, मेरा परिवार ही है, मैं सुंदर हूँ, मैं क्वालिफिकेशन हूँ, मैं। We love this thing. हमें चीजें अच्छी लगती है। वह प्रभु का जाएंगे, प्रभु का पास पीछे जाना है, प्रभु का पीछे जाना है, तो मैं को हटा के हम्बल करना है, मैं को हटा के हम सर्वेंट बनना है। We should humble down ourselves हमें को दीन करना है और अपनी मैं को निकालना है। before you are the master. पहले हम अपने मालिक थे, But now when you follow Jesus, लेकिन जब यीशु के पीछे चलते हैं you need to serve Him. तो आपको लोगों की सेवा करनी Love होती है, people. लोगों से प्रेम करना होता Forgive है, people. उन्हें माफ करना होता है, Helping people. उनकी मदद करनी होती है, Speak the truth. सच बोलना होता है, Lead the way of God. प्रभु के रास्तों पे चलना होता है, Obey God. प्रभु की इच्छाओं पर चलना Listening होता to है, His voice. प्रभु की आवाज को सुनना And होता है, whatever He और जब says, प्रभु कहता है कुछ follow Him. उसे करना पड़ता है। Then Peter said, तो पतरस ने कहा, God said, do you also going to go away from me? तो प्रभु कहते तुम्हें भी जाना, तुम्हें भी Are you going to stop following me? क्या तुम भी मेरे पीछे चलना छोड़ Many are दोगे? late. बहुत तो चले गए, Let them, you also go. तुम्हें भी जाना है तो You जाओ, also go. तुम भी जाओ। Then Peter said, no, तो पतरस ने कहा, gone. हे प्रभु, But Peter answered, no, Peter said that, what? हे प्रभु, हम No. किसके पास जाएं? Yeah, where we will go? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। Peter knew that Jesus is the true living God. तो पतरस जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, Only Jesus is God. कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। Only through Jesus Christ only there is a सिर्फ salvation. यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, Only Jesus Christ is the everlasting life. सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन There है, is no other God. कोई और रास्ता नहीं है। That's why Peter stand up. तो इसलिए पतरस खड़ा हुआ। आप लोग को तो पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं जानती। आप अनंत जीवन आपका अलावा से नहीं मिलेंगे, मैं आपका पीछे जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। So that should be our answer. तो इस तरह से हमें भी उत्तर देना आना चाहिए। In the time of difficulties, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, in the time of struggle, जब मुश्किलें आती in हैं, the time of जब persecution, सताव आएगा, in the times of no money, जब पैसा नहीं in होगा, the times of everything's a fail, जब सब कुछ खत्म हो in जाएगा, the times of everything has gone, जब सब कुछ चला जाएगा, we must decide it. हमें भी निश्चय लेना है, Because only God can save your life. क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही अपने जीवन को बचा सकता है। Enemy will come and destroy. दुश्मन तो आगे नाश करेगा, God will restore me प्रभु बचाएगा भी। if you follow Him. अगर हम उनके पीछे चलेंगे तो That is the things that Peter said. ये चीजें पतरस बोलता है You are the one who gives salvation. कि आधे अनंत जीवन I will follow you. कि मैं आपके पीछे ही चलूंगा। That is why Peter became the great man of God. और इसलिए पतरस परमेश्वर का एक महान जन That है। is why Peter in the Matthew chapter 16, verse 18, मत्ती 16 का 18 and that Jesus told among the disciples. कि यीशु मसीह ने बाकी Let us start to that. That is right now. Jesus God told to Peter, "You are the rock. I will build my church upon you." मत्ती 16 का 18 पेज नंबर 27। Read. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। Amen. So now Peter is the one who received Jesus Christ is the salvation. तो पतरस वो है जिसने यीशु मसीह का उद्धार पाया। He is the fisherman. वो एक मछुआरा था, He is a very simple man. वो बहुत साधारण व्यक्ति था, But he said that you are the salvation. और उन्होंने कहा नहीं यीशु मसीह आप उद्धार हैं, I will no go back. मैं वापस नहीं मुड़ूंगा, I will follow you. मैं आपके पीछे ही चलूंगा। Then Jesus told to तब Peter, यीशु ने पतरस से कहा "You are the rock. तुम चट्टान हो, I will build my church." मैं अपनी कलीसिया तुम पर बनाऊंगा। See, the church of Rehoboth आप लोगों की कलीसिया देखते is हैं, not my church. ये पास्टर कमाई का चर्च नहीं, It's not our church. ये हमारा चर्च नहीं, This is the God ये church. परमेश्वर की कलीसिया So है। whenever you come to church, जब भी आप चर्च आते
हैं। You just say, I'm going to the house of आप God. बोलो प्रभु के घर में जा रहा हूँ। So God told Peter, तो पतरस को यीशु ने कहा Peter will be the pastor. कि पतरस एक पासवान की तरह I बनेगा, will build my church. क्योंकि मैं अपनी कलीसिया You are the rock. तुम चट्टान पे बनाऊंगा, Nobody cannot prevent the church. कोई उसके सामने प्रबल नहीं होगा। That is why today no one cannot kill the church. और इसलिए आप देखिए कोई चर्च को खत्म नहीं कर पाता। Today many people try to destroy आज churches. बहुत से लोग चर्च को जलाते हैं, मारते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। It is no human being established the church. इंसान ने चर्च को बनाया ही नहीं है। When they destroy the church, जब इस चर्च को कोई तोड़ देगा, God will build another. प्रभु को यहाँ खड़ा कर देगा। When you destroy this church, जब लोग इस चर्च को खत्म करेंगे, they will go out and do another place. लोग बाहर जाके दूसरे चर्चेस खोल They लेंगे। can't destroy the church. चर्च खत्म नहीं होता है। See, if the church is destroyed, अगर चर्च टूट जाए, long time it will be destroyed. अगर चर्च खत्म होते तो अब तक तो कितने खत्म हो चुके होते। The more the church is लेकिन persecuted, आप देखिए जितना खताब बढ़ रहा है, the more spreading, उतनी कलीसियाएं बढ़ रही the हैं, more build the church. उतनी कलीसियाएं बढ़ रहे हैं। Amen. Amen. If they kick it out, we'll go to another place. वो यहाँ धक्का मारेंगे, हम कहीं और निकल लेंगे। Because the church God cannot destroy. फिर कलीसिया प्रभु ने बनाई है, कोई इंसान That's नहीं the बना God सकता। said, I will build my church. इसलिए परमेश्वर ने कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। I keep your key. मैंने तुम्हें चाबी दी है, Nobody cannot destroy. कोई इसको नहीं खोल पाएगा। Even the hell, नरक में, even the heaven. स्वर्ग में भी। You Peter, तुम पतरस, you are the rock. तुम चट्टान हो। Because the Peter come to realize that Jesus is the लेकिन salvation. पतरस को समझ में आ गया था ये यीशु मसीह उद्धार है। So we must be that kind of faith. तो हमारा विश्वास उस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। We must be following like that. हमें इस तरह से यीशु के पीछे चलना है। So that is the things that today the topic is that how far did you follow तो Jesus? आज का संदेश यही है कि आप यीशु के पीछे किस हद तक चलेंगे। You are following only for healing? क्या आप सिर्फ चंगाई तक ही चलेंगे, You are following only to save your life? या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही You are चलेंगे, following only to receive all the good things? या सिर्फ बढ़िया चीजें मिल जाए हो गया बस इतना ही चलेंगे। You will get these things, अब इससे मिलेंगी, but this thing will end on this world. लेकिन ये चीजों का आनंद तो इसी दुनिया में खत्म हो जाएगा। But if you really believe लेकिन in अब Jesus, सच में अगर इसमें विश्वास करके चलेंगे, do what He said, जो प्रभु की आज्ञा लिखी है बाइबल follow में, what He said, जो प्रभु ने बाइबल में कहा है वो चलेंगे उसके you साथ will have salvation. आपको उद्धार मिलेगा, You will have salvation. आपको उद्धार मिलेगा। But blessing will not save our life. पर आशीष हमें उद्धार नहीं देते। But if you follow Jesus, लेकिन अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, you will surely bless. आप आशीष तो पाएंगे ही पाएंगे, You will surely heal. आप चंगाई भी पाएंगे ही Because पाएंगे। God is the क्योंकि healer. प्रभु को चंगाई देने वाला God है, is the प्रभु blesser. आशीष देने वाला है। But today many people forget about to follow Jesus. लेकिन लोग आज यीशु को छोड़ चुके हैं, They follow the gift. उनको सिर्फ वरदानों से मतलब है, They follow giving. They follow only healing. उनको सिर्फ चंगाइयों से मतलब They है। all follow give me. उन्हें बस मुझे क्या फायदा हो जाए यही चाहिए बस। हम प्रभु मांगते हैं, प्रभु ये प्रभु देते लेकिन प्रभु बताता है अभी तो मैंने दिया कि काम हम कहते नहीं, मैं नहीं करेंगे, तो हम ऐसे। So that is why the Bible said many follow Jesus Christ. तो बाइबल इसमें बताती है कि यीशु के पीछे तो हजारों चले, लाखों चले, But when God started talking to them, लेकिन जब परमेश्वर को बताया कि चलने का अर्थ क्या है, God says stop all the ungodly manner. तो सारी अपवित्र चीजों को तुम्हें छोड़ना होगा। That many are going away. तो बहुत सारे तो फिर गए उल्टे। Then many people आज बहुत सारे लोग they follow Jesus. यीशु के पीछे चलते हैं, But when Jesus says stop doing this, लेकिन जब यीशु उनकी गलतियां, उनके पाप उन्हें दिखाता है और कहता है छोड़ दो, then they cannot. वो नहीं छोड़ पाते अपने पापों And को they stop following Jesus. और यीशु को ही छोड़ देते हैं। Sometimes कभी-कभी you ask something, आप कुछ मांगते हैं, God give. प्रभु देता भी है। Sometimes कई बार God listening, प्रभु सुनता है but don't give. पर देता नहीं है, Because God knows that this is not कि प्रभु God. को पता है कि सही टाइम नहीं है अभी देने का। But when God stop giving, पर जब प्रभु देना बंद करता then we है, say प्रभु मेरा साथ नहीं है, प्रभु मेरा को आंसर नहीं देता, प्रभु मेरा को ऐसे हेल्प नहीं करता। ऐसा नहीं है, प्रभु आपका साथ है 24 आवर्स, लेकिन प्रभु मालूम है कैसे टाइम अच्छा हो रहा है, प्रभु मालूम है कैसे टाइम आपको जरूरी है, प्रभु मालूम है कैसे टाइम आपको कैसे करना है, लेकिन हमको पेशेंस नहीं है। You didn't have patience. हमें धीरज नहीं होता, हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर आज ही आना चाहिए। You didn't have patience and faith. धीरज नहीं है, विश्वास नहीं होता। So अचानक से हम घुमाते हैं और अचानक से निकलते हैं। So God said, if you follow me, परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे पीछे चलते there हो, will be a problem. परेशानी तो आएगी। The Bible says in Matthew, बाइबल में लिखा है the way of Jesus is very narrow कि way, यीशु के पीछे चलने का रास्ता बहुत सकरा है, very narrow. बहुत सकरा।
But if you enter लेकिन अगर तुम उसमें चलोगे in the narrow way, वो सकरे मार्ग there will be snake. सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, कांटे You आएंगे। need to think carefully ध्यान से पैर कदम बढ़ाने so हैं that the snake will bite you. ताकि सांप का So काटने that जाए, the thorn will cut you. कि कांटा ना लग जाए। You will be careful and walking. ध्यान से पैर कदम बढ़ाने हैं, Then you will be safe. तो बच जाओगे। लेकिन हम क्रिश्चियन हैं, ऐसे नहीं थी कि ऐसे जाएगा तो स्नेक भी बाइट करेगा, थॉर्न भी करेगा। हम क्रिश्चियन हैं, ऐसा करेगा तो गाली भी देगा, ड्रामा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, सारी चीज हम लोग का लाइफ में ऐसे करके जाएगा। That is talking about. तो ये परमेश्वर बात कर रहे हैं। ड्रिंक आपका रास्ता में आया, ड्रिंक पिया, आपका रास्ता में कुछ आया, पंच कर दिया, हम so that is not the thing. तो इस तरह का जीवन नहीं चाहिए। But when you become Christian, लेकिन अगर आप the मसीही बन गए, the narrow walk talk about. तो सकरा मार्ग क्या है? Be careful तो सकरा मार्ग क्या है? ध्यान से चलना होता है। in your road. अरे क्या है क्या नहीं है, Temptation will come up. परीक्षाएं तो होंगी, How you need to run. उससे भागना कैसे है? Anger will come up. गुस्सा भी आने का मन करेगा, तब कैसे रोकोगे? झूठ बोलना क्या आएगा? झूठ बोलने का मन भी How आएगा, you need to go. तब कैसे चुप रहोगे? What is that? चोरी करने का मन आएगा. How you need to go. तब कैसे जाओगे? That is talking about the narrow way. इसी को बोलते हैं सकरा मार्ग, कि सोच के ध्यान से चलना होगा। Satan way is too big. शैतान का मार्ग तो चौड़ा है, खाना पीना, गाली देना, झूठ बोलना, सुंगली करना, सारे रास्ता पर आए. But the narrow way talk about be careful. पर सकरा मार्ग मतलब ध्यान से चलने वाला मार्ग। So when you be careful, तो जब आप ध्यान से चलते हैं, सारे साइड से एंगर से आते हैं. Come this side, all the Satan will come like a bomb. तो जब सकरा मार्ग होगा तो चारों तरफ से शैतान अटैक करने की कोशिश करेगा। Then when you be careful, तो अच्छा यहाँ से इधर से आता है, पुलिस आया, आप ऐसे हो जाएगा. इधर से पुलिस आया, आप ऐसे हो जाएगा. लेकिन इधर से पुलिस आया, आप भी ऐसे करेगा तो हाँ, टेम्पटेशन में गिर गया, दारू में गिर गया, झूठ में गिर गया, सारे चीज में पुलिस आया, आपका पास पहुंच जाएगा. लेकिन हम ध्यान में होते तो हाँ इधर डेंजर आ रहा है, आप निकालेंगे, हाँ इधर आ रहा है, हम ऐसे. That is the talking about narrow. तो इसी को कहा गया है सकरा मार्ग। Amen. आमीन। So to follow Jesus. तो यीशु के पीछे चलने का मतलब, We should deny everything that is not acceptable. तो जो चीजें प्रभु की नजर में गलत है उसे छोड़ना है हमें। So that is the Bible talk about. तो ये बाइबल बताती है। So many people follow Jesus. कितने ही लोग यीशु के पीछे चल रहे थे, But God says stop lying. लेकिन जब परमेश्वर कहता है झूठ बोलना बंद करो, Stop doing evil. बुरे काम छोड़ो, Then many will say it is too hard तो teaching. लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल सिखा रहे हैं। Verse 60 बताया था ना, it is very hard teaching. तो लोगों ने कहा बहुत मुश्किल है चलना, तो I cannot. इतना अच्छा मसीह में नहीं बन सकता। Then go back many ways. लोग फिर गए उनसे। Same thing. इसी तरीके से So many people follow Jesus. बहुत सारे लोग आज भी यीशु के पीछे चलते हैं, But few people पर कुछ लोग ही remain staying. अंत तक पहुंचते हैं। Sometimes they go through persecution. सताव भी होता है, Even some people there. कई लोग तो रास्ते में मर भी जाते हैं। Many pastors die. बहुत पास्टर साहब मर गए, Many churches बहुत die. विश्वास, बहुत कलीसियां जला दी गई हैं आज, They never give up. पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। So our life तो हमारा जीवन following Jesus. यीशु के पीछे चलना, If we need to follow Jesus, अगर हम यीशु के पीछे चलते हैं, there will be challenges. मुश्किलें तो आएंगी, There will be temptation. परीक्षाएं भी There will होंगी, be attack. अटैक्स भी होंगे, But our heart लेकिन हमारा दिल should be built in the rock. परमेश्वर की एक चट्टान के ऊपर खड़ा होना चाहिए। Nothing should not shake him. कोई भी चीज हमें हिलाने ना पाए। They will come for few moments. हाँ, कुछ समय के लिए परीक्षाएं, सताव तो This thing आएगा, will not lasting forever. पर ये चीजें हमेशा नहीं रहती। Your pocket empty will not आपकी forever. खाली जेब भी हमेशा नहीं रहती। But in that empty पर moment, जब खाली है उस समय, if you fall into temptation, आप परीक्षा में अगर गिर गए, चोरी you कर दी, didn't have patience, धीरज नहीं हुआ, then Satan is winning. तो शैतान तो जीत But गया। in that moment, लेकिन जब पैसा नहीं है उस समय, faith in God. आप विश्वास रख के Today you बैठे, didn't have. आज नहीं है, Tomorrow God will. कोई बात नहीं, प्रार्थना करूंगी, प्रभु Today you are देगा। angry. आज गुस्सा आ रहा है, Tomorrow you are not angry. नहीं कल गुस्सा नहीं कर रहे हुए, That is God talk तो about. परमेश्वर ये कह रहा So है। for the few moments, तो कुछ समय के लिए be patient. धीरज रखना है, Trusting in बस God. विश्वास रखना है, Endure. भरोसा रखना है, सहन करना है, Trust. विश्वास करना है, So that you can reach the place God is there. ताकि जहाँ परमेश्वर है आप वहाँ पहुँच So we पाए। should not be the people that went away from God. हम उन लोगों की तरह नहीं बनना है जो उल्टे फिर जाते हैं। Many people follow Jesus. बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलते हैं Many go. और बहुत सारे उल्टे भी फिर We जाते should हैं, not that kind of पर person. हमें उनकी तरह नहीं बनना We है। should be
follow till the end. हमें उनकी तरह बनना है जो मृत्यु के समय तक भी No matter जाए, what. चाहे कुछ भी हो जाए। You might be in sick bed. हो सकता है बीमारी You में हो, might be in ICU. आप आईसीयू में भी हो You सकते might हैं। be, doctor say you are not, cannot be able to डॉक्टर live. कहेगा तुम ठीक ही नहीं हो सकते, We should be feeling फिर God. भी विश्वास रखना है। Die for the Lord. यीशु के लिए मर जाओ, कोई You नहीं, will go to heaven. हम लोग स्वर्ग तो जाओगे। But this world is not our home. लेकिन ये दुनिया तो हमारा घर नहीं है, Our home is eternal. हमारा घर वहाँ है, अनंत घर। For that faith and और उसकी तरफ विश्वास रखकर बैठे हैं, then you will see God is sitting inside. और फिर आप देखोगे परमेश्वर को बैठे हुए, Then God will say, और परमेश्वर कहेगा when you die and when you come, कि जब आप मर के परमेश्वर के oh, सामने when जाओगे Christ come, और जब मसीह आएंगे, oh my sons, my मेरे daughter, बेटा मेरी बेटी well done, बहुत अच्छा काम किया, come to my आओ house. मेरे घर पे आओ। That's me. ऐसा हमें सुनने की आशा Every day होती I है। am longing for that. पास्टर कह रही मैं भी रोज यही आशा रखती हूँ। प्रभु said, oh मेरा बेटा बेटी आओ, आप इतना मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दिया कि आज का दिन तो आपके लिए है। ये विश्व के होम है। हमारी ऐसी आशा होनी चाहिए। आमेन। आमेन। We all let us stand together. आइए हम सब खड़े हो जाएं।